پاکستان تحریک انصاف اوورسیز چیپٹر کے زیر اہتمام پہلی 5 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کنووکیشن سینٹر اسلام آباد میں جاری ہے۔ کانفرنس میں وفاقی وزراء، گورنرز اور اوورسیز نمائندوں کی بھرپور شرکت بھی ہوئی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ہونے والی اس عالمی کانفرنس سے کل وزیر اعظم عمران خان خصوصی خطاب کریں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آبان۔ پاکستان تحریک انصاف اوورسیز چیپٹر نے اسلام آباد میں پنڈال سجا لیا۔ پہلی 5 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کنونشن سینٹر اسلام آباد میں جاری۔ کانفرنس میں وفاقی وزراء، گورنرز اور دنیا بھر سے اوورسیز نمائندوں کی بھرپور شرکت۔ آج کے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی اسد عمر کا کہنا تھا، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ جب پاکستانی مل کر کام کریں، متحد ہو جائیں، تو دنیا کا کوئی بھی چیلنج ہم اس کو میٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اولین ہماری ریکوائرمنٹ ہے۔ وزیر ماحولیات ملک امین اسلم نے اپنے خطاب میں بلین ٹری کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کو پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ عمران خان جیسا ایماندار پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ ہم نے کرپشن فری پاکستان بنانے کا عہد کیا ہے۔ یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے ہر روز شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک سرکس لے کے آ جاتے ہیں۔ بہت ہو گیا۔ اس ایک دفعہ میں آپ کا لیڈر عمران خان ایک ہی گیند سے 3 وکٹیں اڑا کے ہمیشہ کی ان کی سیاست کو دفن کر دیں گے۔ پھر بات ہوگی پاکستان کے اصل ایشوز کے اوپر، پھر بات ہوگی پاکستان کی ترقی کے اوپر، پھر بات ہوگی پاکستان کے اداروں کے اوپر، پھر بات ہوگی پاکستان کی خودداری اور خود مختاری کے اوپر، پھر بات ہوگی صرف ترقی کی، خوشحالی کی، نئے پاکستان کی اور پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان شہباز گل نے کہا ہے کہ اپوزیشن جو مرضی کرے مگر عمران خان آسانی سے جانے والا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈی چوک پر عمران خان سے محبت کرنے والے ثابت کر دیں گے کہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج پاکستان میں اتنے موبائل بن رہے ہیں جتنے شاید اس سائز کے کسی اور ملک میں نہ بنتے ہو۔ پی ٹی آئی کی کانفرنس میں دنیا بھر سے پارٹی کے منتخب عہدیداران شرکت کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آنے والے پی ٹی آئی کے عہدیداران نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ عمران خان صاحب کی یہ جو کاوش ہے، خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آج خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے یہ کنونشن بلا کر کہ واقعی جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں۔ اس کا مقصد جو ہم چاہتے تھے، ہمارا مقصد جو تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ریکوگنائز کیا جائے، وہ الحمدللہ انہوں نے اس چیز کو ریکوگنائز کیا ہے اور انشاءاللہ اس کا فائدہ آئندہ تحریک انصاف کو بہت ہوگا۔ بھی پی ٹی آئی لیڈرز ہیں فرام آل اوور دا ورلڈ، وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور سب مل کے اپنے ملک کے لیے جو آنے والا کل ہے اس کے لیے جو بھی ہم نے مسائل آگے رکھے ہیں اوورسیز کے، مل کے ہم نے ڈسکس کیے ہیں اور عمران خان کا شکریہ ادا کریں گے۔ جو اوورسیز کانفرنس ہے وہ بہت جوش و خروش سے ہو رہی ہے اور 25 ممالک سے جو آیا اوورسیز پی ٹی آئی کے وہ انہوں نے شرکت کی ہے اور کافی تعداد میں لوگوں نے کی ہے۔ انشاءاللہ ہم خان صاحب کا آخری دم تک ساتھ دیں گے۔ ہمیں عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کا ہمارا بہت اچھا ویلکم ہوا ہے اور تھینک یو سو مچ، آرگنائزیشن بہت اچھی تھی۔ بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں کہ خان صاحب نے یہ جو ایسا ایونٹ ہمارے لیے رکھا ہے، ہمیں لگا کہ ہم اپنے گھر میں سب آ گئے ہیں، سب بہن بھائی اپنے گھر میں آ کے ایسے لگا ہے کہ جو آج کل شادیوں کے سیزن ہے سب اپنے اپنے گھروں میں آ رہے ہیں، ہمیں یہ لگا کہ یہاں پہ ایک پروگرام ہوا ہے، ہمیں خان صاحب نے بلایا، انشاءاللہ خان صاحب کی جیت ہوگی۔ فرسٹ ٹائم اوورسیز کانفرنس ہو رہا ہے پاکستان میں، تو اس کے لیے سارے اوورسیز پاکستانی یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، تو آئی ریئلی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ سارے پاکستانیوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کا۔ یہ کانفرنس دیکھ کے بہت اچھا لگا اور ہمارے جتنے ہزاروں کویسچنز ہیں ان کے آنسر ملے اور ہم عید کے انتظامات سے بہت خوش ہیں اور جتنا پیشن ہمیں کریٹ کیا گیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور ہم جو ہے فلی انفارمڈ ڈیسیجن کریں گے اب جہاں جا کے ہم انٹرنیشنل چیپٹرز کے اندر۔ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں پہلے دن سے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور ہم تحریک عدم اعتماد کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم خان صاحب پہ مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ تقریب کے شرکاء نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ یہ جو کنونشن ہو رہا ہے ادھر اسلام آباد میں، آج ہم جتنے بھی دوست احباب آل اوور دا ورلڈ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہم تہہ دل سے خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں
कि उन्होंने ओवरसीज़ को वोटिंग का हक दिलाया। खान साहब ने हमें इज्जत दी है और हमने क्योंकि इसमें उन्होंने हमें वोटिंग का हक दी है और इस चीज़ को हम वही आगे लेके चलना चाह रहे हैं कि इस मुल्क को और खान साहब को हम किस तरह और मजबूत कर सकते हैं। कन्वेंशन में शिरकत का जो मकसद है वो खान साहब का जो मकसद था वो तो ये कि हमें हमारी अहमियत, क्योंकि हम लोग यही समझते थे कि हम ओवरसीज़ वाले जब वहाँ से यहाँ आते हैं हम लोगों को बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर एक तो उन्होंने ये और दूसरा हम लोगों को ये उन्होंने बताया है कि वो ओवरसीज़ के लिए उनके क्या क्या इक़दाम हैं, उन्होंने जो जितने काम किए वो सब ओवरसीज़ को बता रहे हैं। पहला मकसद हमारा ये है कि हम अपने कायद इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और अपनी पीछे कैबिनेट के साथ हैं और हम लोग उनको बताने आए हैं कि लाइक जो कुछ भी आजकल पाकिस्तान के हालात हैं हम उसमें अपने खान साहब का साथ देंगे और अदम एतमाद का जो ये टोपी ड्रामा चल रहा है हम लोग उसके उसके साथ बिल्कुल भी नहीं मुत्तफिक हैं और इंशाल्लाह खान साहब जो है वो अभी भी हैं और हम आइंदा भी वहीं आएंगे। इंशाल्लाह 2023 में हम भारी अक्सरियत के साथ इमरान खान साहब को दोबारा से अपना लीडर बना के अपना प्राइम मिनिस्टर बना के दोबारा लेकर आएंगे। ये ओवरसीज़ का कॉन्फ्रेंस का मकसद है एक तो मीट एंड ग्रीट अट्रैक्शन विद द वर्ल्ड एज वेल। तो अभी खान साहब के पास हम सारे ओवरसीज़ उनको स्ट्रेंथ के साथ उनके पीछे हैं। इंशाल्लाह ये जो नो वोट कॉन्फिडेंस जो वो हुई है तो हम सारे ओवरसीज़ उनके पीछे हैं। इंशाल्लाह ताला खान साहब कामयाब होंगे और ये कॉन्फ्रेंस में हम सारे मुतहद हैं। इमरान खान की कोशिश की वजह से वी आर रियली हैप्पी सी हियर के डिफरेंट कंट्री से लोग आए हैं और डिफरेंट कंट्री से लोगों ने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को। एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी वी आर वेरी हैप्पी। स्पेशली इस कन्वेंशन के लिए आई हूँ और इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। हमें जो यहाँ पे इज्जत मिली है और जो हमें वार्म वेलकम मिला है हम बिल्कुल भी इस बात को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम इमरान खान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। हमें अपने मुल्क से प्यार है, हमें अपनी आवाम से प्यार है और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ने हमें एक लीडर ईमानदार दिया है, हम उसको हेल्प करें क्योंकि कुछ 40 साल से इस मुल्क में हमें भी उससे भी ज़्यादा जो हो रहा था, करप्शन हो रही थी, जो लोग आवाम के लिए नहीं सोचते थे, मुल्क के लिए नहीं सोचते थे, तो अब हम उनके साथ हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से इस आलमी कॉन्फ्रेंस से दुनिया भर में बसने वाले समंदर पार पाकिस्तानियों को खासी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी सियासत और मईशत में नए दरवाजे खुलेंगे। गुलाम हुसैन आवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क व कौम की खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं। इन ख्यालात का इजहार मारूफ समाजी शख्सियत और गुलकार इब्रारुल हक ने सहारा ट्रस्ट की फंड रेजिंग तकरीब में किया। मकामी होटल में सजी रंगारंग पाकिस्तानी सकाफती तकरीब को मौसीकी के सुरों ने चार चांद लगा दिए। मंचले इब्रारुल हक के गीतों पर भंगड़े डालते रहे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिल खोलकर एहतियात दिए। मज़ीद तफसीलात वसीम काज़मी के इस रिपोर्ट में। मगरबी लंदन के मकामी होटल में सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट बरतानिया के ज़ेर एहतमाम एक रंगारंग फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लंदन और गिरदोनवाज से ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रीरीन सहारा फॉर लाइफ की पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में केसेज और दीगर मूजी बीमारियों के इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात फराहम करने पर इब्रारुल हक और उनकी टीम को सराहा और कहा कि पाकिस्तान को ऐसे इदारों की सख्त जरूरत है। हमको भरपूर ताउन करना चाहिए ताकि गरीब नादार अफराद का इलाज उनकी दहलीज पर मुमकिन हो सके। खूबसूरत तकरीब में सुहेल सलामत अली खान ने खूबसूरत सूफियाना कलाम पेश करके शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। इब्रारुल हक ने फंड रेजिंग की अपील के साथ साथ अपने मारूफ पंजाबी गीत पेश करके महफिल ही लूट ली। इब्रारुल हक के मशहूर जमाना गीतों पर शुरका ने खूब भंगड़े डाले, रक्स किया। कहीं दमादम मस्त कलंदर तो कहीं अखियां और डीक दियां जैसे कलाम ने शुरका को झूमने पर मजबूर किए रखा। एक नौजवान सबसे लाली परचम लहराकर अपने जज्बात का इजहार करता रहा। तकरीब से खिताब करते हुए PTI रहनुमा और गुलकार इब्रारुल हक का कहना था कि सहारा फॉर लाइफ 19 सालों से नारोवाल में इर्द गिर्द के देहात समेत कस्बों के लिए मुफ्त इलाज को यकीनी बना रहा है और हमेशा बरतानिया से एहतियात की सूरत में पाकिस्तान के लिए खिदमत और वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया जाता है, जिसको सलाम पेश करना चाहिए। तकरीब के शुरका ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट 19 साल से चल रहा है। 600 बेड्स का हॉस्पिटल और रिमोट रूरल एरिया में 45 लाख लोगों का इलाज कर चुका है। मेडिकल कॉलेज इज अप एंड रनिंग सिंस लास्ट 6 years और उसके बाद अभी कैंसर हॉस्पिटल हमारा बन गया। लंदन के लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है, म्यूज़िक को भी सपोर्ट किया है और इस चैरिटी की कॉज को भी। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने हमेशा सपोर्ट किया है और मैं उनके लिए एक गाना भी बना के लाया हूँ आज, जो मैं सुनाऊंगा खुसूसी तौर पे, जिसका उन्वान है सब परदेसी जिंदाबाद।
क्योंकि उन्होंने सिर्फ सहारा को सपोर्ट नहीं किया, पूरे पाकिस्तान को हर शोबे में सपोर्ट किया है. First time I'm coming to see Abrar. I saw him back in November and I knew he was going to do a charity event today and I'm so excited. Sabse aage बैठी हुई हूँ, I'm so excited to see him and obviously like he's doing a really good thing, like he's got a really good charity as well, so I'm only here to support him. आज का फंक्शन जो है सहारा ट्रस्ट ने अपने कैंसर हॉस्पिटल के लिए अरेंज किया और रॉयल नवाब ने इसको फुल सपोर्ट किया. सहारा ट्रस्ट काफ़ी अरसे से और इब्रार भाई मेहनत करते आ रहे हैं और हम हमेशा इनको सपोर्ट करते आ रहे हैं और आगे भी इस तरह इनको इंशाल्लाह सपोर्ट करते आएंगे. आज सहारा वालों की चैरिटी डिनर है तो हम इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इनका बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए ताकि जो हमारे पाकिस्तान में लोग सफ़र कर रहे हैं या उनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो ये उनको पूरा कर सकें. Great time, it's fantastic. I think ऐसी events and functions ज़्यादा होने चाहिए because not only is it good for the community but it's also building awareness for the charity, the cause, which is so big and I think we should help. इसमें कैंसर के मरीज आते हैं, पाकिस्तान में बहुत गरीब आदमी है जो अफोर्ड नहीं कर सकते और मैंने भी इनकी बहुत हेल्प की है. कहना पड़ता है कि 4 वार्ड मैंने दिए कैंसर अस्पताल के लिए जो गरीब लोगों की मदद करेगा. सहारा फाउंडेशन ने चैरिटी का प्रोग्राम रॉयल नवाब में किया है और यहाँ यूके के लोग हमेशा पाकिस्तान की खिदमत के लिए आगे आगे रहते हैं. कैंसर हॉस्पिटल की अपील हो, शौकत खानम की, नमल की, कोई भी हो, यूके के लोग हमेशा पाकिस्तान के लिए हर वक्त हाजिर हैं. This is a very important event in educating young people about how to fundraise, how to earn money for cancer and inshallah help all the people that are suffering right now. So it's very important in educating everyone, yeah. It's very meaningful towards the people that need people, so the donations are very will help them. फंड रेजिंग तकरीब में कम्युनिटी की मारूफ समाजी और फलाही शख्सियत शेख सरबलन, जाहिद राजा, जैनब राजा, रॉयल नवाब के वक्कास मलिक, मलिक रूमी, नईम ताहिर और दीगर ने भरपूर शिरकत की और इब्राहिम हक की फलाही खिदमत को सराहा. वसीम काजमी, 92 न्यूज़, लंदन. मैनचेस्टर के मकामी हॉल में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आंखों के 1.5 लाख ऑपरेशन मुकम्मल होने पर तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें इमाम मस्जिद अल अक्सा शेख उमर अब्दुल्ला अल कसवानी, मेंबर्स ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी, अफजल खान, मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स लॉर्ड वाजिद खान, मेयर ऑफ रजडल आसिम रशीद और चेयरमैन अल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद के अलावा दीगर शख्सियात ने भरपूर शिरकत की. इसका मज़ीद अहवाल जानते हैं मैनचेस्टर से राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में. पाकिस्तान और दुनिया के कई ममालिक में फलाही सरगर्मियां सर अंजाम देने वाले फलाही इदारे अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने बड़ा संग मील अबूर कर लिया. ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम आंखों के 1.5 लाख ऑपरेशन मुकम्मल हो गए. इस अहम कामयाबी पर मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें इमाम मस्जिद अल अक्सा शेख उमर अब्दुल्ला अल कसवानी, मेंबर्स ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी, अफजल खान, मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड वाजिद खान और चेयरमैन अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद के अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ तबका से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की. इस मौके पर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के तहत आंखों के 1.5 लाख ऑपरेशन मुकम्मल होने पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया गया और इसके साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के लिए खिदमात को भी सराहा गया. तकरीब में इमाम मस्जिद अल अक्सा इमाम शेख उमर अल कसवानी ने खसूसी तौर पर शिरकत की और खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने फलस्तीन के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया है और इन्हें अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से किए गए फलाही कामों को अपनी आंखों से देखा है. And we go to hospitals. I see them. They go to hospitals. Al Maqasid Hospital, Al Augusta Victoria Hospital. They are, Alhamdulillah, go on all Palestine. I go with them to Pakistan. We visit eye hospitals for eyes and Yatim Madrasa. I visit with them. I said for you to trust the Mustafa inshallah because they send the money for who need this money. Barakallahu fikum.
and I asked you to visit Al-Aqsa. मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद का कहना था कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट पर एतमाद करने पर मैं लोगों का बेहद मशकूर हूं और लोगों के इस एतमाद का ही नतीजा है कि आज हम 1.5 लाख लोगों की आंखों के ऑपरेशन करने में कामयाब हुए हैं। Fantastic event today, Al Mustafa Welfare Centre. They're raising so much funds and making so much difference to people's lives and helping individuals get their eyesight back. It's absolutely amazing. Tonight, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फंडरेजिंग डिनर था। मैं मशकूर हूँ जी अब्दुल रज़ाक साहब का। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने बहुत ज़बरदस्त फंडरेजिंग की है। दूर दूर से लोग आए हैं, उन्होंने बहुत प्लेज किया है। तो इमाम वो अल-अक़सा मस्जिद शेख अल-किस्मानी भी यहाँ थे, तो लोगों ने बहुत इंजॉय किया है। कैरिटन में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है अल मुस्तफ़ा चैरिटी का, और जो बड़ी खुशी की बात ये है कि जो ये काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड पे, जो नीडी लोग हैं उनके मुख्तलिफ ज़रूरियात को पर्टिकुलरली जो बहुत मज़े की चीज़ सामने आ रही थी, 150,000 लोगों की आई साइट रिस्टोर करना। बस आप सोचें कितनी बड़ी ये नेमत है उन लोगों की ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का जो चैरिटी डिनर हुआ, पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी, जहाँ भी जुल्म होता है और जहाँ लोग भूखे सोते हैं, हमेशा अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान, यास्मीन कुरैशी, लॉर्ड वाजिद खान, सदर पीटीआई नॉर्थ आसिफ भट्ट, कारोबारी शख्सियात बिलाल गफूर और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के तहत 1.5 लाख मुस्तहिक अफराद के आंखों के ऑपरेशन करके उन्हें बिनाई के नूर से मुनव्वर किया। बेशक ये लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और आज की इस फंड रेजिंग तकरीब के शुरका ने दिल खोल कर चैरिटी में हिस्सा लिया। I'm very pleased to be attending the Al Mustafa fundraiser at the Sheraton Suite here in Manchester. They have done tremendous work as a charity over the years, and today they are celebrating 150,000 cataract operations successfully performed. That's 150,000 people alone who had their eyesight restored. मैं तमाम लोगों को शुक्रगुजार हूँ जिन्हें दिल खोल कर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट को डोनेशन दी, और मैं समझता हूँ कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का लोगों का एतमाद है, जिस एतमाद के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज तक 1.5 लाख जो हम ऑपरेशन कर चुके हैं, ये लोगों के एतमाद का एक बहुत बड़ा रिजल्ट है लोगों के सामने। कोविड की वजह से हमारे ये एनुअल इवेंट्स नहीं हो रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बाद हमारे ये एनुअल इवेंट्स हो रहे हैं। और आज सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने ग्लोबली 1,50,000 150,000 कैटरेक्ट सर्जरीज मुकम्मल की हैं हमारे साइट रिस्टोरेशन प्रोग्राम के तहत। ओवरसीज पाकिस्तानियों की ये रवायत रही है कि वो वतन अजीज में फलाही कामों और मंसूबों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये तकरीब इस बात का मुंह बोलता सबूत थी। साथी रिपोर्टर वकार बाबर के साथ राजा वाजद, 92 न्यूज, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर के मकामी हॉल में इंडस हेल्थ नेटवर्क की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान में इंडस अस्पतालों में मुद्दत इलाज, मुआलजा और दीगर सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की और दिल खोल कर इस कार खैर में हिस्सा लिया। तफसीलात जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। ये सारे तो कठपुतली है, असली लीडर समझाता है। जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है और उसकी बढ़कें यूं उर्दू की सब हदें फलांगने लगती हैं। जो मार्च में मार्च को करता है तो कांपे टांगने लगती है। इंडस हेल्थ नेटवर्क के तहत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ फलाही प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेजिंग तकरीबात का सिलसिला जारी है। मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में होने वाले इंडस हेल्थ नेटवर्क की पुरवकार तकरीब में मुख्तलिफ शुबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और दिल खोल कर इस कार खैर में हिस्सा लिया। तकरीब में पाकिस्तान में इंडस हस्पतालों में मुद्दत इलाज, मुआवजा और दीगर सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान में इंडस हस्पताल में मुफ्त इलाज, मुआवजा और दीगर सहूलियात पर ब्रीफिंग देते हुए इंडस हेल्थ नेटवर्क के बानी डॉक्टर अब्दुल बारी खान ने पाकिस्तान में इंडस हेल्थ प्रोजेक्ट्स के अगराज़ व मकासद बयान किए। फंड रेजिंग तकरीब में टीवी और स्टेज के मारूफ फनकार सुहेल अहमद ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि इंडस हेल्थ नेटवर्क अपनी तर्ज का वो वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान में इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात दे रहा है। इंडस हॉस्पिटल के चैरिटी डिनर के लिए हम यहाँ हाजिर हुए थे और ये इंतहाई खुशाइन बात है कि पाकिस्तानियों को आज भी आप इन मुश्किल हालात में, महंगाई के दौर में, जबकि खुद हर आदमी का अपना गुजारा बड़ा मुश्किल हुआ है, जब भी किसी मुफलिस और नादार
बहन भाई के लिए इनको आवाज़ दी जाती है तो ये लब्बैक कहेंगे। यहाँ आपने भी देखा कि मैनचेस्टर के लोगों ने किस तरह मोहब्बत की और किस कदर डोनेशन दी। मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद बहुत नवाजे, इनको अल्लाह ताला बड़ी रहमतें रखे, अल्लाह ताला इनको बहुत रिस्क दे, बेपनाह रिस्क दे और ये इसी तरह तकसीम करते रहे। बड़ी ही खुशी हुई मुझे देख के कि आज भी लोग उसी तरह अपने सफ़ेद पोश बहन भाइयों के लिए, मुफलिस और नादार लोगों के लिए, अपने हमवतनों के लिए वही जज्बा रखते हैं। मीडिया से बात करते हुए तकरीब के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर साइमा राउफ, डॉक्टर अब्दुल बारी खान, अदील चौधरी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की शुरका ने इंडस अस्पताल की पाकिस्तान के शुबा हेल्थ में खिदमात को सराहा। तो जो मैं देख रहा हूँ जोश जो है पूरा हॉल भरा हुआ है, लोगों के अंदर जोश है, ताकि वो इसके लिए, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आज हमारा काफ़ी फंड रेज होगा। ये 2 तारीख से हमारा दौरा शुरू हुआ था, अब आखिरी लेग के ऊपर है, कल हम ग्लासगो जाएंगे, लेकिन जो जिस तरीके का रिस्पांस आया है यहाँ पर, ये यकीनन मेरे अंदाज़ा, हमें एक खदशा था कि कोविड के बाद शायद वो रिस्पांस ना आए, लेकिन माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा रिस्पांस है। इंडस हॉस्पिटल वालों के लिए आज चैरिटी मैनचेस्टर में हो रही है एंड वी सेइंग कि रमज़ान के महीने से पहले ही बरकतें बढ़ रही हैं, दैट ऑलमोस्ट मोर देन 100,000 जो है इन्होंने डोनेट किया है यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए। दिस जेनरसिटी ऑफ द मैनक्यूनियंस मैनचेस्टर में। आज जो है ना इंडस हेल्थ नेटवर्क जो पाकिस्तान में यूके की तर्ज का हेल्थ नेटवर्क है, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, एग्जैक्टली सेम एज NHS, इस तरह वहाँ पे काम करते हैं। आज उनका चैरिटी डिनर था जिसमें फंड रेजिंग भी थी और पाकिस्तान के कॉमेडियन भी आए हुए थे। बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। जब मैंने इनके हॉस्पिटल्स विजिट किए तो वहाँ मैंने देखा कि हर सहूलत हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे है और वो सब फ्री सहूलत है। ये एक ख्वाब है, तो प्लीज़ इस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। आज इधर काफ़ी मैनचेस्टर के लोग हैं, वो हम सब मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों से और हमारा दिल चाहता है कि उनको बेहतरीन सहूलत मिले। एग्जाम्पलरी चैरिटी, एग्जाम्पलरी पीपल, एग्जाम्पलरी हॉस्पिटल, माशाल्लाह आज ओवर 130,000 पाउंड जनरेट हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तकरीब के दूसरे शुरका ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की इंडस हेल्थ नेटवर्क के लिए स्पोर्ट को मिसाली करार दिया। उनका कहना था कि ऐसे प्रोजेक्ट से पसमानदा इलाकों में मुस्तहिक अफराद को भी मुफ्त इलाज मालजे की सहूलियात मिल रही हैं। इंडस हॉस्पिटल और उसकी टीम का बेहतरीन काम जो पाकिस्तान के गरीब और मुहताज जो मरीज़ हैं उनके लिए बरतानवी NHS की सर्विसेज की तरह पाकिस्तान के अंदर मुहैया करना न सिर्फ खुश आइंद है, काबिल तारीफ है, बल्कि मेरे ख्याल में हर गयूर पाकिस्तानी दर्दमंद को इन लोगों के साथ भरपूर मदद करना चाहिए। और इंडस सीरीज़ का यूके में मैनचेस्टर का इवेंट था, जिसका मेन मकसद था कि इंडस हेल्थ नेटवर्क जो है पाकिस्तान में, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको सपोर्ट करें। और बहुत बड़ी मैनचेस्टर की कम्युनिटी आज इस इवेंट में आई और उन्होंने माशाल्लाह बढ़ चढ़ के इसको सपोर्ट किया है। I had the opportunity to visit Indus Hospital in Karachi some years ago when I was serving as a member of European Parliament for the northwest of England. So I'm delighted to see Dr. Bari and his entire team so active here in Manchester, raising funds for such a worthwhile cause from the northwest of England all the way to the heart of Pakistan. चैरिटी का फंक्शन हो रहा है मैनचेस्टर में, ये इंडस हॉस्पिटल है, ये बड़ी बिग ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान में ये 30 सूबों में इनके हॉस्पिटल हैं। ये तकरीबन 5.4 मिलियन पीपल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और फ्री ऑफ इलाज। इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क जो है पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहा है, कई शहरों में इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो इनका जो एम है कि NHS की तरह का सिस्टम बन जाए जहाँ पे मजदूर जो गरीब लोग हैं उनका मुफ्त इलाज किया जाए। तो मैं समझती हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ सोचने से और बातें करने से नहीं होता, उसके लिए हमें फंड्स चाहिए होते हैं जो जिसके लिए हमें आप सबकी ज़रूरत है। इन्होंने ऑलरेडी 13 हॉस्पिटल्स पूरे पाकिस्तान में करे हैं जिसमें मुफ्त इलाज हो रहा है पेशेंट्स का, एंड आई रियली एडमायर दैट।
that, and I'm very, very keen to join this cause. And it's really, really important at this time in Pakistan. पाकिस्तान में बरतानवी तर्ज के NHS सिस्टम को मुतारिफ करवाने और इलाज मालजे की मुफ्त सहूलियात देने पर बिलाशुबा इंडस हेल्थ नेटवर्क खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। कैमरा पर्सन अमारा और साथी रिपोर्टर वकार बाबर के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। सेंट्रल जामे मस्जिद गुलशन बगदाद बेडफोर्ड में शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीर सैयद अमीर कबीर अली वली हमदानी, पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह हमदानी का सालाना उर्स मुबारक का एहतमाम किया गया, जहां उलमा इकराम और सना खान ने मखसूस अंदाज में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अकीदत के फूल निछावर किए। देखते हैं ल्यूटन से चौधरी निसार की ये रिपोर्ट। बेडफोर्ड में होने वाले उर्स की सदारत पीर सैयद मोहम्मद जाबिर अली शाह सजादा नशीन आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ गुजर खान ने की। इस मौके पर असदुल्ला शाह, वजाहत अली, इमाम शाह, मुफ्ती जुबैर तबस्सुम, अनवार मुस्तफ़ा हमदमी समेत बरतानिया बाहर से उलमा कराम, मशाइख उज़ाम और सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। और एक हदीस था फरमाया कि हम आज तक जन्नत में थे, हम उनकी पुष्ट में थे। नूह अलैहिस्सलाम जब शराब में पुष्ट में थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में थे, हम उनकी पुष्ट में थे। ये सब सारा इकट्ठा था, अभी तो सब इकट्ठा था। अब इसमें एक चीज जाहिर हो गई कि नबूवत और विलायत का मिसाल एक होगा। नबूवत और विलायत का मिसाल एक है, इसमें फर्क नहीं। जो मिजाज नबूवत का है वो मिजाज बोले वही मिजाज विलायत का। ये जो हजूर ने लिए फरमा दिया ना कि अली के साथ हक और हक अली के साथ, लेकिन मैं एक और इस्तेदलाल कर रहा हूं, जरा तवज्जो चाहता हूं। वो मुरीद कि जिनका ताल्लुक आसाना में बंगाली शरीफ से है। आले नबी का जब जिक्र मेरे पास बड़ी हस्तियां आ रही है, उनके सुभान अल्लाह की छंद आए, मैं किनका नाम ले रहा हूं? मौलाए कायनात का नाम ले रहा हूं, सैयदा खातून जन्नत का नाम ले रहा हूं, इमाम हसन पाक का नाम ले रहा हूं, इमाम हुसैन पाक इकबाल का नाम ले रहा हूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम ले रहा हूं, इमाम बाकर का नाम ले रहा हूं, इमाम जाफर सादिक का नाम ले रहा हूं, इमाम मूसा काज़िम का नाम ले रहा हूं, इमाम अली नकी का नाम ले रहा हूं, इमाम अली तकी का नाम ले रहा हूं, इमाम अली रज़ा का नाम ले रहा हूं, इमाम हसन असली का नाम ले रहा हूं, गौसे जली का नाम ले रहा हूं, दाता मखदूम अली का नाम ले रहा हूं, पीर मेहरबी का नाम ले रहा हूं, पीर जामुनी का नाम ले रहा हूं। उलमा कराम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि माह शाबान वो मुकद्दस महीना है जिसके बारे में आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है, जिसने शाबान की इज्जत और एहतराम किया, इबादत और रियाजत की, अल्लाह पाक को राजी कर लिया, अल्लाह उसे पूरे साल की आने वाली मुसीबतों से निजात दिला देता है। उलमा कराम का मजीद कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरी अहले बैत की मोहब्बत का प्रचार करोगे तो दुनिया आखिरत में सरफराजी पाओगे, मेरी आल की मोहब्बत तुम्हारे लिए राह निजात है। इस मौके पर शुरा का कहना था कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत और सहाबा कराम की मोहब्बत का इजहार करते हुए नौजवान नस्ल को सही मायनों में कुरान करीम की तालीम से आगाह करना चाहिए। समझता हूँ कि वो अज़ीमुल मर्तबा तस्लियाँ हैं कि जो उन्होंने खुसूसन खित्ताए कश्मीर और पाकिस्तान में दीन इस्लाम की शमा को फिरोज़ा किया और लखू खा गुम करता रहा, इंसानों के लिए राहबरी और पेशवाई का फरीज़ा से अंजाम दिया और आने वाली नस्लों को इन औलियाए कराम की अज़ीमुल मर्तबा हस्तियों के साथ वाबस्तगी और इससे रूशनास कराना यकीनन इसके लिए उर्स की ये महफिल बहुत ही मुमिद मुआविन साबित हो। प्रोग्राम के आखिर पर कश्मीर, फलस्तीन और अफवाज पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी गईं। चौधरी निसार, 92 न्यूज़, ल्यूटन। बर्मिंघम सिटी सेंटर में कायम होमलेस फ्री कैफे में बेघर अफराद की तादाद में इजाफा, नादार, गरीब और बेघर अफराद के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम फेडोनेडो ने भी रज़ाकारों की तादाद बढ़ा दी है।
यूक्रेनी पनाह गजीनों को खुशामदीद कहने के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में बेघर अफराद के लिए काम करने वाले फलाही अदारे भी यूक्राइनी शहरियों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार। बर्मिंघम में बेघर अफराद के लिए कोशां फलाही तंजीम नीडो फीडो ने अपने रजाकारों की तादाद में इजाफा कर दिया। बर्मिंघम सिटी सेंटर में कायम होमलेस फ्री कैफे में बिला इम्तियाज होमलेस को पका हुआ खाना और दीगर अशियाए खोरोनोश मुफ्त फराहम की जाती हैं। इंतजामिया का कहना है कि यूक्रेनी महाजरीन भी आ जाएं तो हमारा अदारा उनको अशिया जरूरियात भरपूर तरीके से मुहैया करने के लिए तैयार है। फलाही तंजीम की खिदमात से इस्तेफादा करने वाले बेघर अफराद ने भी रजाकारों की खिदमात को सराहते हुए कहा कि फीडो नीडो के रजाकार उन्हें अपनी फैमिलीज की तरह देखते हैं, न सिर्फ उनकी जरूरियात पूरी करते हैं बल्कि उनको दरपेश मसाइल का हल भी निकालते हैं। बेघर अफराद का कहना था कि वो नीडो फीडो के कारकुनों की मदद और सपोर्ट की वजह से अपने आप को महफूज समझते हैं। Very good people. To Fido Nido for the food and the help they provide. Thank you very much. Food helps me out with my pension. I'm only 80 years of age. And it helps me out. Very nice here. You get looked after. And the staff are excellent, very friendly. And it's a very nice place to come and hang out. ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਘਰ। I'm at Fido Nido today and we are basically here on a Friday. Fido Nido open Monday to Friday, but during the weekend they give us a little bit extra. So my friends, we've got some bolognese, some pastas, they really look after us and this bag keeps me going through the weekend. This is Fido Nido. This place is good to come to. I like getting the food parcels every Friday. And it's a good place to come to. The people who talk to me, ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਹੋਮਵਰਕ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। Very pleased to be in this country, which is basically a huge thing. In Romania, I don't see something like this, and unfortunately, I hope to get back on the right track. इस मौके पर होमलेस कैफे के मुंतजमीन अब्दुल्ला मुश्ताक, राफे अहमद और फहीम भट्टी ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसानियत के नाते यूक्राइनी पनाहगजीनों को खाने पीने और रहायश की अशद जरूरत है और इस मौके पर हमारी तंजीम उनकी हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। यूक्रेनियन सिटीजन्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में यूके की तरफ रुख कर रहे हैं, तो इसीलिए फीडो नीडो ने जो सा अपने रज़ाकारों के लिए तादाद भी काफ़ी ज़्यादा कर दी है और हमने अपने बैठने की जगह भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कर दी है। और इसी तरह जिस तरह फीडो नीडो बाकी होमलेस पीपल के लिए काम कर रहा है, इसी तरह हमारे दरवाजे उनके यूक्रेनियन सिटीजन्स के लिए भी खुले हुए हैं। फीडो नीडो के फूड बैंक्स और जो कैफ़ेज़ हैं वो तमाम लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूक्रेन से काफ़ी असाइलम के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। एक मुश्किल सिचुएशन है जिसमें फीडो नीडो हमेशा की तरह इन अफराद के लिए भी अपने दरवाजे खुले रखेगा और हर किस्म की अशिया जिसमें फूड की पार्सल्स हैं, रेगुलर खाने की अशिया हैं, जो दीगर चीज़ें क्लोथिंग की आसाइशें हैं जो इनके लिए हम कर सकते हैं वो पूरी कोशिश करेंगे। We're always open weekly for our food parcels and distributing to vulnerable people. However, lately we understand that the world is in a very difficult position with the crisis happening in Ukraine. A lot of refugees and asylum seekers are coming from Ukraine to the UK and we want to help them as well as we can. दीन इस्लाम में भी महाजिरीन के साथ हुस्न सलूक का दर्स मिलता है। नीडो फीडो की तरह दीगर फलाही तंजीमों को भी यूक्रेनी महाजिरीन की मदद के लिए आगे आना होगा जिससे हुकूमत का बोझ भी कम हो जाएगा। जो यूक्रेनी पनाहगज़ीन बरतानिया में आ रहे हैं, अगर फलाही अदारे इसी तरह उनके साथ ताउन करते रहें तो हुकूमत पर इसका बोझ बहुत कम पड़ सकता है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। KPL के दूसरे एडिशन की तैयारियों के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान सरदार अदनान रशीद, वाइस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा बख्तावर मीर, KPL के सदर आरिफ मलिक, CEO चौधरी शहजाद और दिगर मेहमान खुसूसी ने शिरकत की और बताया कि हमने ओवरसीज़ कम्युनिटी की सलाहियतों से मुस्तफ़ीद होने के लिए बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में रोड मैप का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में।
इस मौका पर मुंतजिमीन का कहना था कि KPL क्रिकेट के फरोग से आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का टैलेंट खुलकर सामने आएगा। इस तरह दुनिया को खेलों के जरिए कश्मीर के लोगों की तरफ से एक मुस्बत पैगाम भी मिलेगा। इस तकरीब के जरिए दुनिया भर से नौजवानों को अपनी आला सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए क्रिकेट के मैदानों में जहां अपना नाम पैदा करेंगे, वहां दुनिया कश्मीर के कुदरती हुस्न से भी आगाही हासिल करेगी। बरतानिया में सबसे ज्यादा कश्मीरी कम्युनिटी आबाद है और बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में हमारी कोशिश है कि KPL के कुछ मैचेस करवाए जाएं ताकि दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी नौजवान क्रिकेट के मैदान में आगे आ सकें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौंसलर जनरल सरदार अदनान रशीद, कौंसलर बख्तावर मीर, कश्मीर प्रीमियर लीग के सदर आरिफ मलिक और दीगर ने कहा कि खेलों का इनेकाद बरतानिया में परवान चढ़ने वाली चौथी नस्ल को अपने मुल्क से जोड़ने का बेहतरीन जरिया साबित होंगे, बल्कि इससे पाकिस्तान की मईशत मजबूत होने के साथ साथ मसला कश्मीर की आवाज आलमी सतह पर उजागर होगी। Today we had with us the organizers of Kashmir Premier League who have taken us through their journey of Kashmir Premier League Season 1. Through them we have witnessed the success of the inaugural season which happened last year. I would say Kashmir Premier League is promoting and supporting the game of cricket, which is a true passion of our people. It is highlighting the culture of the region by promoting investment and tourism in the region, which has been a great achievement of Kashmir Premier League. कश्मीर प्रीमियर लीग की जो मीटिंग हुई है, मैं इससे बड़ा खुश हूँ कि इट्स अ पॉजिटिव मूव। वेरी नाइस इवेंट बर्मिंघम में आके, और बर्मिंघम होम ऑफ क्रिकेट की अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ से दूर है। लॉर्ड्स में हम बात करते हैं कि होम ऑफ क्रिकेट है, लेकिन बर्मिंघम में चूँकि पाकिस्तानी कश्मीरी डायस्पोरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, सो बर्मिंघम में हम बड़ी ख्वाहिश रखते हैं कि हम क्रिकेट लेके आएँ किसी भी फॉर्मेट में। वो फॉर्मेट को एग्जीबिशन मैच हो सकता है, और ऑफ कोर्स हम कोशिश ये भी करेंगे। ऑब्वियसली देखें, जैसे आज के इवेंट में मैंने बात की कि फंडामेंटल राइट है, हम फंडामेंटल राइट की तो बात करते हैं। अब भाई सियासत की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि आप क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं। सो आई बिलीव कि चीज़ें यहाँ पे बेहतर होंगी। और इसका मकसद जो KPL का जो सीज़न 2 है उसके बारे में बताना है, और किस तरह सीज़न 1 की कामयाबी बताना है, कैसे ये जो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है हमारे जो क्रिकेटर्स हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से भी और दीगर इलाकों से भी, और ये इस बात को उजागर कर रहा है कि कश्मीर और कश्मीर के लोग कितने पीसफुल लोग हैं। ओवर 52 कंट्रीज लाइव स्ट्रीमिंग और पूरी दुनिया देख रही है कश्मीर में क्रिकेट खेली जा रही है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रही, और वहाँ मजलूम कश्मीरियों के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ठीक है, अब ये जो स्टार्स हैं, चाहे वो पाकिस्तानी स्टार्स हों या इंटरनेशनल स्टार्स, वो खेलने जा रहे हैं वहाँ पे, वो आपकी कंट्री को विजिट करेंगे, वहाँ देखेंगे कि क्या हो रहा है। ओवरसीज कश्मीरियों का कहना है कि क्रिकेट के जरिए जहाँ दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम मिलेगा, वहीं पर कश्मीरियों के हौसले भी बढ़ेंगे और हमारी नौजवान नस्ल भी कश्मीरी कल्चर के साथ जुड़ी रहेगी। रिपोर्टिंग टीम के साथ आबिद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद न सिर्फ कामयाब होगी, बल्कि इसके बाद मुल्क को दरपेश मसाइल को भी बेहतर अंदाज से हल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का आईनी इख्तियार है, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान जो रवैया इख्तियार किए हुए हैं वो गैर आईनी रवैया है, जिसकी वजह से जहाँ इखलाकी रवैये मुतासिर हो रहे हैं, वहीं मुल्क में इंतशार बर्पा हो रहा है। वज़ीर आज़म अवाम के अंदर मकबूलियत खो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि वो अदम एतमाद की तहरीक का शिकार होने की बजाय खुद ही इस्तीफा देकर घर चले जाएं, ताकि नई अवामी मुंतखब क़यादत मुल्की मसाइल को बेहतर अंदाज में हल कर सके। इजलास में मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सीनियर नायब सदर महमूदुल हक डोगर, सदर रियाज रजन अदनान इकबाल भट्ट, सीनियर नायब सदर रियाज रजन चौधरी सज्जाद अली, डॉक्टर महमूद अहमद बाजवा, डॉक्टर तारिक अजीज, वकार नसीब शरीक थे।